Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In a previous video we have seen how to calculate dot product and cross product, and after that we have seen the different problems based on vector. In a today's video lecture we will continue the problems based on vectors. So let us start with first problem. Show that a bar is equal to 6ax cap minus 2ay cap plus az cap and b bar is equal to ax cap plus 6ay cap plus 6az cap are perpendicular. So here first of all the dot product of two vector is given by this formula a bar dot b bar is equal to ab cos theta, where a is nothing but magnitude of a bar, b is magnitude of b bar, and theta is the angle between a bar and b bar. So from the given vectors a bar and b bar we have a bar dot b bar is equal to ax bx plus ay by plus az bz. That means we can write the given vectors a bar and b bar in terms of xyz coordinate system. So from the given vectors a bar and b bar we can calculate here the dot product. So here the value of ax is 6 and the value of ax of the second vector, that is b bar, is also 1. So here 6 into 1 is equal to 1. Then plus, again we have to multiply with this y parameter with the second y parameter, that is minus 2 into 6 is equal to minus of 12, plus the value of z is 1 and here the 6. So 6 into 1 becomes 6. Okay. So here the dot product of this a bar into b bar becomes 6 into 1 6 plus minus 12 plus 6. तो ये आपका आएगा 6 plus 6 is equal to 12 minus 12 which is equal to 0. Thus it indicates that cos theta is equal to 0 because the magnitude of a bar and b bar are not 0, because जो आपका वैल्यू होता है फॉर ए बार एंड बी बार ये मॉड वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है. सो सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो जो आपका ए बार डॉट बी बार का वैल्यू है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो वो आपका 0 आया है. तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये आएगा आपका 0 इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. सो हियर द कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो जो आपका थीटा का वैल्यू हो जाएगा ये आएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ 0 जो आएगा आपका 90 डिग्री. ओके. सो सिंस वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो भी आपके वेक्टर्स गिवन है आपको यहाँ पे ए बार एंड बी बार, दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ द एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री. ठीक है. और जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा दैट इज़ ए बार डॉट बी बार ये 0 होना चाहिए, तभी आपका जो एंगल है कॉस ऑफ थीटा का वो आपका 90 आएगा. हेंस इट इज़ प्रूफ. Let us see second problem. The two vectors are given as a bar is equal to 3ax cap plus 2ay cap plus 5az cap and b bar is equal to ax cap minus 3ay cap plus 2az cap. Find the angle between a bar and b bar. So here the angle between two vectors can be calculated by using either dot product or cross product. दो ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास. जो हमारा एंगल होता है हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करके भी निकाल सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करके भी निकाल सकते हैं. सो लेट अस सी फर्स्ट मेथड हियर बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट. द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज गिवन बाय ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू mod of a into mod of b into cos of theta, where this mod of a is nothing but magnitude of a bar, mod of b is magnitude of b bar, and theta is the angle between a bar and b bar. So thus from the equation number 1, this is our equation number 1, cos theta, we have to here just shift that mod of a bar into b bar to the left hand side. तो यह आएगा आपका cos theta is equal to a bar dot b bar divided by mod of a into mod of b, जो हमारा गिवन फार्मूला है
यहाँ पे हमने उसको सिर्फ शिफ्ट किया है और जो कॉस का आपका टर्म है हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, ठीक है। तो ये आएगा आपका टर्म। तो उसके बाद जब आपको एंगल निकालना होता है यहाँ पे थीटा, तो ये जो कॉस का टर्म है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस सिंपल कॉस बिकम्स कॉस ऑफ इनवर्स, ओके। सो दिस विल बिकम कॉस इनवर्स ऑफ ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो ये जो होता है हमारा न्यूमरेटर टर्म दैट इज़ ए बार डॉट बी बार, यहाँ पे आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ एंड जेड का जेड के साथ। तो हमारे पास ऑलरेडी दो वेक्टर्स गिवन है यहाँ पे ए बार एंड बी बार। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का एक्स के साथ, तो ये आएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। देन सेकेंड वाई का वाई के साथ 2 इंटू माइनस ऑफ 3 बिकम्स माइनस ऑफ 6। सो ये आएगा आपका 2 इंटू -3 minus of 6. Then third z parameter is 5 into 2 that is 10. Okay, तो ये आएगा आपका 3 minus of 6 plus of 10 which is equal to 7. ठीक है, तो ये जो हमारा न्यूमरेटर टर्म था यहाँ पे हमने उसको कैलकुलेट किया है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर टर्म है, तो यहाँ पे a एंड b दोनों का भी मॉड वैल्यू आपको निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे mod value of a bar. So here we have to just use this formula under root of ax square plus ay square plus az square. ax, ay and az values आपको यहाँ पे given है इस क्वेश्चन में, that is 3ax plus 2ay plus 5az. तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बनेगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. देन अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 38. सो दिस इज द मॉड वैल्यू और वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार. इन अ सिमिलर वे वी कैन कैलकुलेट द मॉड वैल्यू ऑफ बी बार ऑल्सो. सो हियर अगेन यूज द सेम फॉर्मूला इन अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर. बी के भी जो आपके पैरामीटर्स है आपको यहाँ पे गिवन है, तो ये आएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके. तो आफ्टर दैट बी बार बिकम्स अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस ऑफ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14. So this is the magnitude value of b bar. Okay, so we have calculated here the value of a bar, b bar and a bar dot b bar. तो ये जो पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट किए हैं इसको आपको सिंपली ये इक्वेशन में पुट करना है. तो ये इक्वेशन बनेगा आपका थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 38 इंटू रूट ऑफ 14. तो ये आएगा आपका रूट 38 इंटू रूट 14 इज इक्वल टू 23.06 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इंटू 7 ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 23.06 इज इक्वल टू 72.33 डिग्री. ओके, सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. तो यहाँ पे हमने जो डॉट प्रोडक्ट है उसको यूज़ करके जो आपका एंगल है ये कैलकुलेट किया है. सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप. तो यहाँ पे हम साइन ऑफ थीटा यूज़ करते हैं और जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वहाँ पे हम कॉस ऑफ थीटा यूज़ करते हैं. एंड हियर दिस एन कैप इज़ नथिंग बट डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए आपको जो भी वेक्टर आपके पास दिया है यहाँ पे उसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स. सो दिस डिटर्मिनेंट बिकम्स ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप. देन द वैल्यू ऑफ ए बार वेक्टर इज 3ax कैप प्लस 2ay कैप प्लस 5az कैप. तो x के पैरामीटर्स मुझे यहाँ पे मिलेगा a के लिए 3, 2 एंड 5. सो वी कैन डायरेक्टली राइट हियर 3, 2, 5.
and the coordinates of B becomes 1, -3 and 2. Okay, then after that in the next step यहाँ पे आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले AX के साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जो AX का रो कॉलम वैल्यू है ये आपको छोड़ देना है यहाँ पे, और जो रिमेनिंग आपके 4 वैल्यूज़ बचेंगे यहाँ पे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। सो दिस 2 × 2 बिकम्स 4, माइनस ऑफ 5 × -3 -15, तो ये आएगा आपका 4 -15 इज इक्वल टू 4 + 15। इन सेकंड स्टेप ये जो मिडल टर्म होता है आपका दैट इज़ फॉर y, तो ये कभी भी हम माइनस लेते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा आपका -AY इंटू ये और ये रो हम छोड़ देंगे, तो ये बनेगा आपका 3 × 2 6 -5 × 1 5 प्लस ये जो हमारा z पैरामीटर है ये और ये रो हम कॉलम वैल्यू छोड़ देंगे, तो ये बनेगा आपका AZ इंटू 3 × 3 -3 × -3 -9 -2। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट हमने अभी सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। तो ये बनेगा आपका A बार क्रॉस B बार इज इक्वल टू -19 AX बार -1 AY बार -11 AZ बार। ओके, और सेम उसका मॉड वैल्यू भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया है इसका मॉड वैल्यू भी निकालेंगे, तो ये बनेगा आपका A बार क्रॉस B बार इज इक्वल टू √-19² प्लस -1² प्लस -11²। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो आपका आंसर मिलेगा आपको 21.97। सिंपली आपको यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करके यहाँ पे अंडर रूट वैल्यूज़ निकालने हैं उसके, तो ये डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था फॉर डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो सिमिलर वे में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी फार्मूला अवेलेबल है, और अभी जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं उसमें हम पुट करेंगे। सो हियर वी विल गेट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू A बार क्रॉस B बार अपॉन मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B। सो दिस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स इंटू द वैल्यू ऑफ दिस A बार क्रॉस B बार इज इक्वल टू 21.97, और जो इंडिविजुअल मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B वैल्यूज़ है हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं, बिकॉज फॉर द डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने उसको कैलकुलेट किया था ऑलरेडी। तो ये आएगा आपका A बार इज इक्वल टू 38 √38 एंड द B बार इज इक्वल टू √14। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। तो अगर आप इसका सिंप्लीफाई करके एंगल निकालोगे तो ये आएगा आपका थीटा इज इक्वल टू 72.37 डिग्री। ओके, सो हियर इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट the angle between two vectors by using dot product and by using cross product. Let us solve one more problem. Given the two vectors r of a bar is equal to -ax bar -3ay bar -4az bar and rb bar is equal to 2ax bar plus 2ay bar plus 2az bar and point C having coordinates 1, 3, 4, find first parameter r of ab bar, second mod of ra bar, third a of a bar, fourth a of ab bar and last a unit vector directed from C towards A। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये। हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है ये। उसके लिए आपको पहले तो बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए कि वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, और उसके बाद कुछ कैलकुलेशन पार्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सी फर्स्ट पैरामीटर आर ऑफ ए बी बार। तो यहाँ पे जो हमारा वेक्टर गिवन है वो आर ऑफ ए बी बार है, यानी यहाँ पे ए जो होता है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस बी इज नथिंग बट एंडिंग पॉइंट, और वी कैन से द टर्मिनेटिंग पॉइंट। So here whenever we have to calculate the vector, then we have to apply the formula ending point minus starting point. तो यहाँ पे ending point है आपका r of b bar minus starting point है r of a bar. So again here we know the value of rb bar and ra bar. So we have to put value of rb bar and ra bar in this formula.
2ax बार प्लस 2ay बार प्लस 2az बार माइनस ऑफ ax बार minus 3ay bar minus 4az bar. So after that this equation becomes 2 minus of minus 1 is equal to 3ax bar plus 2 minus of minus 3 is equal to plus 5ay bar plus 2 minus of minus 4az bar becomes 6az bar. सिंपली आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। देन सेकेंड पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे मॉड ऑफ आर ए बार। तो ऑलरेडी हमारे पास आर ए बार का वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको सिर्फ उसका मॉड वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अंडर रूट जो भी एक्स वाई जेड का टर्म होगा यहाँ पे उसका स्क्वायर करेंगे। सो दिस विल बिकम -1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस ये आएगा आपका 9 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 26, तो ये आएगा आपका 5.099। थर्ड पैरामीटर इज ए ऑफ ए बार। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिया है उसे आपको यूनिट वेक्टर उसका कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको यहाँ पे ए ऑफ बी बार दिया होता तो हम यहाँ पे आर ऑफ बी बार अपॉन मॉड ऑफ आर बी बार ये फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है ए ऑफ ए बार। सो हियर वी कैन यूज दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए, that is r of a bar upon mod of r a bar. The value of r a bar is given having value minus of ax bar minus 3ay bar minus 4az bar divided by the value of mod r of a bar हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, that is 5.099। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा a ऑफ a बार का, ठीक है। जो फोर्थ है आपका पॉइंट वो है a ऑफ ए बी बार। तो यहाँ पे आपको फिर से यूनिट वेक्टर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए बी वेक्टर यहाँ पे आपको नहीं दिया था, यहाँ पे आपको अलग से ए दिया था और दूसरा वेक्टर बी बार दिया था। तो जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे पैरामीटर था दैट इज आर ऑफ ए बी बार, यहाँ पे हमने आर ऑफ ए बी बार ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे हम वही वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका 3ax बार प्लस 5ay बार प्लस 6az बार अपॉन उसका मॉड वैल्यू। तो मॉड वैल्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ उसका स्क्वायर लेना है इन अ रूट। सो दिस विल बिकम 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 3ax बार प्लस 5ay बार प्लस 6az बार डिवाइडेड बाई 36 प्लस 25 प्लस 9। तो जो भी आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू आएगा उसको आपको डिवाइड करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस 3 देन 5 एंड z के साथ। तो ये इक्वेशन आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ax बार ay बार एंड az बार। ओके, तो लास्ट पैरामीटर अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम c टूवर्ड्स a। तो यहाँ पे आपको पहले समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है। तो लेट अस सी हियर द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम c, यानी ये C से यहाँ पे स्टार्ट होगा टूवर्ड्स दी A और C से स्टार्ट होके ये A तक जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन C टू A होना चाहिए और ये C बनेगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये A होना चाहिए आपका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपको कंडीशन दिया है उसके हिसाब से C आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड A इज द एंडिंग पॉइंट। और वेक्टर निकालने के लिए आपको एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट करना होगा। तो ये वेक्टर आएगा आपका आर ए बार माइनस ऑफ आर सी बार। द वैल्यू ऑफ आर ए बार इज गिवन एंड द वैल्यू ऑफ आर सी बार इज ऑल्सो गिवन। वी हैव टू राइट हियर आर ए एंड आर सी बार एंड उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो ये आएगा -1 -2ax बार -3 -6ay बार देन -4az बार -4az बार इज इक्वल टू 8az बार। ओके, so here we have to calculate the unit vector value. So the value of a of ca bar becomes r bar ca divided by mod of r of ca bar. So the value of r a ca bar is equal to minus of 2ax bar minus 6ay bar minus 8az bar, and the mod value of this -2 -6 and -8 becomes under root of -2 square plus minus of 6 square plus minus of 8 square। सिंप्लीफाई करना है आपको ये,
और आपको ये आंसर मिल जाएगा, दैट इज ए ऑफ सी ए बार, दैट इज द वेक्टर directed from C towards A. Okay, so in this way we can solve the given problem. तो I think आपको ये समझ में आया होगा. So this is all about our today's session. Today we will stop here with motivational quote. Today's motivational quote for you is, stay positive, work hard, make it happen. Thank you for watching my videos. If you really like my videos then please like, share and subscribe to my channel. अगर आपके कुछ डाउट्स है या आपके कुछ सजेशंस होते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.